On behalf of PD Committee and Task Force for GST and Income Tax, ICMRFGRT, today we have a webinar on GST readiness, key points to keep in mind. Our today's faculty is CMA Pankaj Kanodia sir. Pankaj Kanodia sir is our distinguished correspondent and registered valuer by profession and the founder of Kanvadia and Company, Plus One Consulting Private Limited. He is also having 10 plus years of experience in costing and indirect taxation since GST was introduced. He is also a practicing cost accountant in 2013, fellow member of the Institute of Cost Accountants of India, registered valuer under IBBI for Securities and Financial Assets, LLB graduate from VT Chokri College 2024. He is also a rank holder in the final examinations of the Institute of Cost Accountants of India in June 2012. He is also affiliated member of the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy UK. He is a Master of Commerce from VNSU 2014. I welcome you, sir. He is also specialized in indirect tax litigation, appeal and refund, cost accounting and cost audit, cost reduction, savings, maker or buy decisions, valuation of startups, and inventory valuation under income tax. Welcome you, sir, Pankaj sir, for today's session. Now over to you, sir. You can start the session. Thank you, ma'am. Thank you. So, before I start, the point, the topic is given or topic is allotted by the vice chairman of WRC and NTY. He told me to took a topic on the GST or took a webinar on the GST. So I preferred we are professional, we are a cost accountant, so we are more on into the GST and cost audits and practice. So I think this topic will help to understand the GST at tribunal, which will come into force, I think. अरे संचित की तरह संचित का फोन दो. So we will start from the key what we should keep in the mind. और कितना बाकी है? और क्या बाकी है फिर? Ma'am, there is disturbance. अरे जल्दी आओ, नहीं तो खत्म कैसे होएगा? Quick. Thank you. So in today's webinar, today's program, I will try to give my thinking, my understanding ki what we should keep in the mind when we are appearing for any commissioner appeal or any adjudications appeal or adjudications or any proceeding in the GST department. So how they can help, how they can add in defense or and in strong position to keep in. So I will try the summarize the things in our PPT. So I will just 1 minute. I'm going to present my PPT. So बेसिकली मैंने जो प्रिपेयर किया है या मैंने जो बनाया है वो उस तरह से बनाया कि एज ए स्मॉल प्रैक्टिशनर या एक एज ए बिगिनर ऑफ द जीएसटी प्रैक्टिशनर, सो हमको क्या क्या चीजें प्रोसीडिंग के टाइम पे ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमको ट्रिब्यूनल्स के लेवल पे या उसके आगे भी हमको हेल्प हो सके. क्या चीजें ट्रिब्यूनल्स हमको मना कर सकती है या कौन सी चीजें हमको नहीं ध्यान प्रॉपरली हमको पेपर वर्क रखना चाहिए, कौन सी चीजें को हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, वो सारी चीजों को मैंने ट्राई किया है विद माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड विद माय लिमिटेड एक्सपीरियंस. मुझे आई होप दैट विल हेल्प टू एवरीवन. My PPT is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. It is visible. Okay.
So, first of all, we will see the topics of what we will cover in this webinar, in this 1 hour, 2 hour sessions. कि फर्स्ट की मास्टर की प्रोविजंस कि क्या क्या हमारे प्रोविजंस है, कि व्हाट अबाउट क्रिटिकल सेक्शन इन द जीएसटी, स्क्रूटनी के सेक्शंस क्या है, इंटीमेशंस के क्या है, एजुडिकेशंस के फ्रेमवर्क कहाँ है, क्योंकि ये सारी चीजें हमको जब हम ट्रिब्यूनल्स में अपीयर होंगे या हम फर्स्ट अपील या सेकंड अपील के लिए जाएंगे, तो ये सारी चीजों का उतना ही इंपॉर्टेंस है कि जितना हम ट्रिब्यूनल्स में नॉर्मल अपील या ग्राउंड्स ऑफ रखते हैं या अपील मेमोरेंडम हम फाइल करते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम फर्स्ट अपील या एजुडिकेशन या स्क्रूटनी के टाइम पे हम कोई भी चीजें मिस कर देते हैं या जानबूझ के नहीं देते हैं और हम ट्रिब्यूनल्स में उसको एडमिट करवा लेंगे, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज प्रोविजन क्लियरली लिखे हुए हैं कि एडिशनल एविडेंसेस ट्रिब्यूनल्स को अगर लगता है कि वो फील्स नेसेसरी कि हाँ ये पहले जानबूझ के नहीं छुपाया गया, या तो ही वो अलाउड करेंगे, अनलेस हमको ये पहले दिन से या पहले इंटीमेशन या स्क्रूटनी से ही उनको हमारे फ्रेमवर्क या हमारे डिफेंस ग्राउंड में रखना चाहिए। सो मैंने ट्राई किया है कि 61, 63, 73, 74, 74A को में मीन्स जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीजें हमको ट्रिब्यूनल्स तक के लिए ध्यान रखना है, वो देखना है। उसके बाद प्रैक्टिकल हैंडलिंग की भाई क्या क्या कौन प्रैक्टिकल जब हम एजुडिकेशंस करते हैं, देखिए प्रोविजंस लिखे हुए हैं, एक्ट है, रूल्स हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं। उसके बाद हमको जब प्रैक्टिकली हम जब जाते हैं, डिपार्टमेंट जाते हैं रेगुलरली, हम प्रोफेशनल्स अगर हम विजिट करते हैं डिपार्टमेंट, तो स्टेट की और जो हैंडलिंग करने की मीन्स हम तरीका बोले या सारी चीजें अलग होती है, और सेंट्रल के साथ हम अगर व्हेन वी आर डीलिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल डिपार्टमेंट, सो उनकी अलग होती है, डीजीजीआई की अलग होती है। सो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद अपील में हमको क्या क्या स्ट्रेटेजी एज ए प्रोफेशनल्स, एज अ टैक्स पेयर को हम इंटरेस्ट में क्या हम रख सकते हैं, कितना हम उनको कितना सेव कर सकते हैं, फिर उसके बाद प्रोफेशनल टूल्स पे हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न से। जो कोई भी प्रोसीडिंग है, अगर हम बात करते हैं कि लिटिगेशन में कोई भी प्रोसीडिंग स्टार्ट, अगर हम इनिशियल कोई स्क्रूटनी स्टार्ट होती है, वो सेक्शन 61 के स्क्रूटनी के थ्रू होती है। जो स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न सेक्शन 61 में दिया गया है कि जो आपके रिटर्न फाइल्ड हुए हैं, हमारे जो रिटर्न फाइल्ड है 1 3B, 3B 2A का डिफरेंस हो गया, 1 3B का डिफरेंस हो गया, या हमने कोई ब्लॉक क्रेडिट क्लेम कर ली है, इंटरेस्ट नहीं पे किया है ऑन द डिलेड पेमेंट ऑफ द इन द 3B, सो उसके लिए डिपार्टमेंट हमको स्क्रूटनी देगा, नॉर्मल स्क्रूटनी सेक्शन 61 में देगा। हमको उसका रिस्पॉन्स 11 में देना है, और आफ्टर दैट अगर सब कुछ ओके है तो वो लोग 11 के बाद 12 में उसको ड्रॉप दे देंगे कि ड्रॉप ऑर्डर ऑफ द प्रोसीडिंग ASMT 12 में। ये यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि सेक्शन 61 में अगर कोई स्क्रूटनी आती है और हमको डिफेंस ग्राउंड में देना है, अगर हम नहीं देते हैं, देन द स्क्रूटनी कन्वर्टेड इनटू द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 73 और 74, बिकॉज अगर प्रोसीडिंग्स यहाँ पे ड्रॉप नहीं होती है तो उसके बाद उसका स्टेप जो है वो इंटीमेशन देंगे, इंटीमेशन टू सोकोज, आफ्टर दैट वो सोकोज में कन्वर्ट होगी, और सोकोज में कन्वर्ट होने के बाद फिर देन आफ्टर एजुडिकेशन जाएगा, ऑर्डर्स बनेंगे, अपील जाएगा, फर्स्ट अपील, सेकेंड अपील। सो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका 61 में कोई स्क्रूटनी आती है, आपको लगता है कि यहाँ पे ही कोई क्लियर हो जाएगा, आपका जो भी आपका टैक्स पेयर या आपका क्लाइंट जो है वो उसके कोई गलती हो गई है, तो वहीं पे सारी चीजें हमको दे देनी है डिपार्टमेंट को। सो फिर नेक्स्ट है सेक्शन 63 में असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन का। अगर बाई चांस डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, इनका असेसमेंट करना है, दे आर लाइबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर GST एक्ट, बट तो वो एक सेक्शन 63 में भी कर सकते हैं उसका असेसमेंट। उसके बाद आती है सेक्शन 65 डिपार्टमेंटल ऑडिट। ये सारे सेक्शंस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से प्रोसीडिंग की इनिशिएशन होती है। कोई भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे मैटर में डायरेक्टली 74 भी आता है, बट कई बार मैटर में 73 के भी मैटर, बट इन उसकी शुरुआत हो सकता है कि 61 से भी हो, तो हम 61 के स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर डिपार्टमेंटल ऑडिट में जो सेक्शन 65 में डिपार्टमेंट ऑडिट करेगी, उसमें से पैराज आएंगे, कई पैरा सेटल हो जाते हैं, कई पैरा हमको नहीं सेटल होते हैं, तो उस पर डिपार्टमेंट हमको वापस शोकोज नोटिस देता है। तो ये भी एक हो गया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन एंड
सर्च हो गया 67 और 70 की प्रोसीडिंग में कि यहाँ पे अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट होती है तो 74 तक तो जानी है। उसके बाद काम करना होगा ना। करेक्ट। सॉरी, तो किधर है? तो थोड़ा टाइम लगेगा सर। तो फिर 10th को कैसे खत्म होगा? 10th को मतलब काम बिल्कुल कैसे? नहीं, आज ही खत्म कर देंगे। उसके Excuse बाद me, पूरा sir. प्रेजेंटेशन बनाना होगा। हाँ हाँ, और कितना बाकी है? कोई सेल्स पार्टी बाकी है। कितना बाकी है? सेम 11 प्रोजेक्ट्स। अभी तक कोई बैठा है? चलो कोई नहीं, मैंने म्यूट कर दिया है। फिर हम इन्वेस्टिगेशन एंड सर्च पे थे कि जो सेक्शन 67 एंड 70 के अंदर में डिपार्टमेंट इनिशिएट करता है। फिर उसके बाद एससीएन एंड एजुकेशन, ये सारी देखिए सेक्शन 61, 63, 65, सेक्शन 67 और 70, इन सब की प्रोसीडिंग अगर जाती है तो अल्टीमेटली उसमें अगर उसमें प्रोसीडिंग शोकॉज नोटिस इनिशिएट होगी तो दो ही सेक्शंस में होगी, 73 और 74 में। और लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 से 73 और 74 को हटा के 74A लेके आए। सो ये दो सेक्शंस हैं, या एक सेक्शन हम बोल रहे हैं कि जहां पे एजुकेशन होंगे, मीन्स कोई भी नोटिस आएगी तो उसका एजुकेशन 73 और 74 में होगा। अब इसके बाद आता है पिक्चर में फर्स्ट अपील। सो फर्स्ट अपील जब हम फाइल करते हैं सेक्शन 107 में, तो कुछ मैंडेटरी कंडीशंस है कि जो उसके बिना हमारी अपील स्टैंड ही नहीं करती है, जैसे कि 10% ऑफ प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। सो हम जो 10% प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट है, इसका वेवर या इसका हम सोच रहे हैं कि अमाउंट ज्यादा है, तो इसका वेवर कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। डिपार्टमेंट के स्टैट्यूट में लिखा हुआ है कि भाई 10% ऑफ प्री डिपॉजिट यू हैव टू पे बिफोर फाइलिंग ऑफ योर फर्स्ट अपील, या बिफोर फाइलिंग ऑफ द अपील बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। सो 10% ऑफ टैक्स डिस्प्यूटेड, जो भी आपका 73 या 74 में ऑर्डर इन ओरिजिनल या DRC 07 आया, उसमें जो डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है उसका 10% आपको भरना है। कैसे भरना है? जब हम 107 की अपील फाइल करते हैं तब भरना है। CESI जिस तरह से आपका टैक्स होगा उसका 10% आपको भरना है। ये पेमेंट अगर आपने कोई DRC 03 पहले कर चुके हैं, या आपने कोई पेमेंट किया हुआ है जो उसमें अप्रोप्रिएट किया हुआ है ऑर्डर्स में, हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो टैक्स के मैटर्स हैं, अरे ईवे बिल्स के मैटर हैं जिसमें पेनल्टी इंपोज है सेक्शन 129 के अंदर, तो वहां पे आपको 25% भरना कंपलसरी है। उसके ये पेनल्टीज या प्री डिपॉजिट भरे बिना आपकी अपील, हमारी अपील मेंटेनेबल नहीं है। वो उसी ग्राउंड्स पे हमारी अपील रिजेक्ट हो जाएगी कि हमने प्री डिपॉजिट, जो रिक्वायर्ड प्री डिपॉजिट है वो नहीं भरा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2025 हम बोल सकते हैं कि जो लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2024 में चेंज आया था, या प्रपोज चेंज टैक्स के जो ऑर्डर्स होते थे, 10% प्री डिपॉजिट ही हमको भरना था। पेनल्टी का, अगर खाली पेनल्टी के ऑर्डर्स है, देयर इज नो टैक्स डिमांड इन द ऑर्डर, सो इन दैट केस हमको प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2025, 10% ऑफ प्री डिपॉजिट नीड्स टू पे ऑन द पेनल्टी ऑर्डर ऑल्सो। जहां पे हमारे पास टैक्स के डिमांड्स नहीं है, ओनली फॉर द पेनल्टी, जैसे फेक बिलिंग के केसेस में, बोगस भी ITC के केसेस में, बहुत सारे केसेस में 122 की पेनल्टीज लगी होंगी क्लाइंट पे, तो वहां पे हमको 10% अब अपील पेनल्टी के केस में जब हम फर्स्ट अपील में जाएंगे तो भरना है। ये 10% प्री डिपॉजिट 1 अक्टूबर 2025 के बाद जो भी हम अगर अपील फाइल करते हैं तो मैंडेटरी है। अब हमको टाइम कितना मिलता है 107 में अपील फाइल करने के लिए? सो हम अगर बात करें कि 3 मंथ्स मिलता है, अगर हम टैक्स पेयर साइड से सोचते थे कि भाई टैक्स पेयर को 3 महीना मिलता है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। हम बात, ये ऐसा नहीं है कि ऑर्डर इशू हो गया लास्ट मंथ में बट हमको मिला नेक्स्ट 2 महीने, 30 दिन, 30 दिन, 30 दिन बाद, या 5 दिन, 10 दिन बाद, तो हमको जो 3 मंथ्स काउंट करना है, या 3 मंथ्स विल कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। सो ये हमको 3 महीना मिलेगा फर्स्ट अपील फाइल करने के लिए 107 में। सेम चीज है कि अगर हमारा कोई ऑर्डर है जो हमारे फेवर में है, क्लाइंट के फेवर में आता है, तो डिपार्टमेंट कैन गो ऑल्सो फॉर द अपील बिफोर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी इन 107। डिपार्टमेंट और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपीलेट
फर्स्ट अपील फाइल कर सकती है, बट उनको जो टाइम दिया गया है वो 6 महीने दिया गया है। इन दोनों केसेस में 30 डेज का कॉन्डोनेशन अवेलेबल है कि अगर कोई सफिशियंट है कि जिसकी वजह से आप 30 डेज तक अगर कोई डिले होते हैं 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद, सो आपकी अपील एक्सेप्ट हो जाएगी। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान ये रखना है कि जो प्री डिपॉजिट की कंडीशंस है, प्री डिपॉजिट का जो क्राइटेरिया है वो खाली टैक्स पेयर के केस में अप्लीकेबल है। अगर गवर्नमेंट कोई डिपार्टमेंट कोई ऑडिट अपील में जाती है तो वहां पे प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इन दिस केस कि जो हमको अपील की टाइम दी गई है 107 में 3 मंथ्स दी हुई है इन द मंथ्स, एंड कॉन्डोनेशन का जो टाइम दिया गया है वो 30 डेज में दिया गया हो। सो वी एज ए प्रोफेशनल वी हैव टू टेक केयर दैट कि अगर सिंगल डे का भी डिले होता है तो हमारी अपील रिजेक्ट हो सकती है। सो 3 मंथ्स प्लस 30 डेज है, नॉट 4 मंथ्स। सो होप सो आई एम क्लियर ऑन दिस पॉइंट। फिर उसके बाद हम आते हैं कि भाई जैसे अगर हम स्क्रूटनी और नोटिसेस के रिस्पॉन्सेज देते हैं तो हमको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या चीजें नहीं ध्यान, मीन्स क्या चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं या कौन सी चीज पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो अगर ASMT 10 या कोई भी शोकोज है तो हमको प्रॉपरली अगर उसमें कुछ कैलकुलेशंस की वजह से कुछ डिमांड निकल रही है तो हमको उसको प्रॉपर रिकंसिलेशंस बना के दे देना है कि जैसे कि जिससे कि अगर वो ऑफिसर्स या अगर डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं भी करता है तो हम वो चीज को ऑन रिकॉर्ड ला सकते हैं कि जब हमको अपीलेट अथॉरिटी के सामने हम चीज को कंसीडर करवा सकते हैं। उसके अलावा कुछ लीगल हमारे पास कोई जस्टिफिकेशंस हैं या कोई हमारे पास कोई उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कोई रिकंसिलेशंस है कि जो इस साल की ITC हमने अगले साल लिए तो उसको प्रॉपरली हम उसको टेबलाइज करके रिकंसिलेशंस करके उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 99C सारी चीजें हम लगा के दे सकते हैं। सो माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग या मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से या मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो भी हम रिप्लाई बना रहे हैं, चाहे वो स्कूटनी की बनाए, चाहे हम शोकोस का बनाए या अपील में हम कोई ग्राउंड्स लिखते हैं, सो एवरी रिप्लाई या एवरी सबमिशन शुड बी ट्रीटेड एज अ ट्रिब्यूनल रिकॉर्ड कि हम ऐसा लिख रहे हैं या ऐसा कुछ बना रहे हैं कि जिसको हम ये सोचे कि भाई ये ट्रिब्यूनल के सामने भी जा सकता है। सो उस लेवल का हमको लिखना चाहिए, उस लेवल का हमको चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भाई ये तो डिपार्टमेंट के सामने जाने वाला है, चलो ठीक है इसमें क्या ध्यान देना। प्रॉपर हमको रिकंसिलेशंस देना चाहिए। ओरल एक्सप्लेनेशन से अवॉइड करके हमको प्रॉपरली हमको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने चाहिए, डॉक्यूमेंट्री उसके केस फ्लोज देने चाहिए। और अब हम कितनी बार उनके साथ करस्पॉन्डेंस किए, चाहे मेल के थ्रू किए हो, फिजिकल किए हो या पर्सनल हियरिंग किए, उसकी लॉग रखें, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जब हम अपीलेट अथॉरिटी के सामने जाते हैं। बिकॉज देखिए जब तक हम अपीलेट अथॉरिटी, सबसे पहले हम जो अपील में ऑर्डर कर चैलेंज करते हैं या हम अपील करते हैं बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी, सो अपील अथॉरिटी यही बोलेगा कि भाई आपने लोअर अथॉरिटी को ये सारी क्यों नहीं दी। ऑन दैट ग्राउंड, ऑन दैट क्वेश्चन, हमको ये बोलने के लिए हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस या सारी चीजें होनी चाहिए कि हमने ये सारी चीजें दिया था, बट इग्नोरिंग द आवर सबमिशंस या हम इस सब चीजों को साइड पे करके डिपार्टमेंट या लर्नर अथॉरिटी है पास दिस ऑर्डर। सो वहां पे हमारा एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है कि भाई नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स या नॉन कंसिडरेशन ऑफ द सबमिशन मेड बाय अस। आफ्टर दैट अगर सोपर्स के बाद एजुकेशन प्रोसीडिंग की 73 या 74 में जो है उसमें सेक्शन 75 में भाई उसने हमको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हमको ऑर्डर पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया। तो पर्सनल हियरिंग में हम गए, तो जो गए कि नहीं गए या उसके बाद भी हम अगर हियरिंग अटेंड करके आते हैं उसके बाद भी जो ऑर्डर्स है स्पीकिंग ऑर्डर्स है कि नहीं है, इवन कोई प्रोसीजरल लैप्स तो नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे जो प्रोसीजर है जो सेक्शन या रूल्स में लिखे गए हैं कि बिफोर इशूइंग द शोकोज नोटिस अथॉरिटी हैव टू इशू द इंटीमेशन टू द शोकोज नोटिस कि 73 में या 74 में अगर आपको DRC 01 में शोकोज नोटिस देना है तो उससे पहले DRC 01A देना है। देयर आर लॉट ऑफ द कोर्ट जजमेंट की विच से कि भाई प्रोसीजरल लैप्स है तो आपको पहले 1A देना है फिर उसके बाद ही 1 देना है।
सो इन दैट केसेस अगर हमको डायरेक्टली 1 मिला है तो इसको भी हमको काउंटर रखना चाहिए, हमको हमारे डिफेंस ग्राउंड्स में लिखना चाहिए कि भाई ये जो एक्ट में या जो प्रोविजंस में प्रोसीजर लिखे हुए हैं वो फॉलो नहीं किए गए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो कोई बेसलेस एलिगेशंस लग जाते हैं कि किसी के स्टेटमेंट पे या किसी के यहाँ पे सर्च हुई, फलाना फलाना भाई के यहाँ पे सर्च हुई तो हमारे यहाँ पे भी उस चीज का इम्पेक्ट आया और हमारी आईटीसी ब्लॉक कर दी या हमारे आईटीसी को चैलेंज कर दिया। ऑन इन दैट केसेस हमको क्रॉस ऑब्जेक्शन भी मांगना चाहिए कि भाई हमको क्रॉस ऑब्जेक्शन चाहिए, बिकॉज किसी के कहने पे मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना सही नहीं है जब तक कि मेरे खिलाफ या मेरे अगेंस्ट कोई प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है। तो जो भी हम एजुकेशन करवाते हैं या हम प्रोसीडिंग के लिए रिप्लाई देते हैं 1A की और सो उस टाइम पे हमको रिटर्न सबमिशन प्रॉपर देना चाहिए, कंप्रेहेंसिव रिटर्न सबमिशन दैट विल इंक्लूड लीगल प्रेसिडेंट्स, फैक्चुअल रिकंसिलिएशन, एक्सपर्ट ओपिनियन, या उसके साथ केस लॉज लगाने चाहिए अगर हमको केस लॉज हम कोई सपोर्टेड है। एडजॉर्नमेंट्स अगर लेने हैं तो प्रॉपरली टाइमली एडजॉर्नमेंट लीजिए कि अगर भाई पर्सनल हियरिंग्स आ रही है बट ड्यू टू सम रीजंस की या तो आप बिजी हो या तो कंसल्टेंट से या तो टैक्स पे क्लाइंट से पेपर्स नहीं आए या पेपर्स नहीं आए या तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, तो उस केस में आप उनके एडजॉर्नमेंट अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट्स नहीं लेना चाहिए। ड्यूल आर्ग्यूमेंट्स कि अगर हम कोई भी प्रोसीडिंग या कोई भी मैटर में कोई भी पैरा का हम डिफेंस बना रहे हैं तो उन हर चीज में दो चीजें होती है, एक कि सब्सेंटिव मेरिट्स या हम टेक्निकल मेरिट्स बोल सकते हैं और दूसरा एक कि जो एक्ट में या हम उसको इस तरह से हाँ लिमिटेशंस इशू हो गए जैसे डेफिशिएंसीज हो गए कि जो प्रोसीजरल लैप्स हो गई, हम उस चीजों को भी मेरिट कर सकते हैं कि भाई कौन सी चीजों पे। एक तो हो गया कि भाई आपका जिस 1-3B का डिफरेंस है तो नेक्स्ट ईयर के एडजस्टमेंट नहीं ध्यान में रखे तो वो आपने मेरिट्स में उन सबको दिया। दूसरा एक टेक्निकल ग्राउंड्स हो गए कि जहां पे डिपार्टमेंट की साइड से उनके प्रोसीजर ही नहीं फॉलो किए, तो दोनों चीजों को हमको रख के रिप्लाई देना है या हमको सबमिशन देना है। खाली आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं भाई हमारे मेयरली 1-3B का डिफरेंस है और 1-3B तो नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट हो गया है, तो वो कंप्लीट नहीं देखा जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट अपील की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, மியூட்னா அப்ப அதுல இன்ட் இல்லாம இருக்கு வேண்டாமா? இரு நான் வார இந்த எடுத்து அனுப்புறேன். सो हमको फर्स्ट अपील की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो फर्स्ट अपील में हम जब फाइल करते हैं जैसा मैंने बताया कि 3 महीने के अंदर हमको अपील फाइल करनी है। 10% ऑफ टैक्स डिस्प्यूट हमको प्री डिपोजिट बनना है। अब अगर हम टैक्स डिस्प्यूट की बात करते हैं तो वहां पे हमको पेनल्टी भी कंसिडर करनी। हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना चाहिए कि जहां पे अगर टैक्स इन्वॉल्व है और पेनल्टी भी है तो हम खाली टैक्स को ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई पेनल्टी भी है और टैक्स भी है तो दोनों का 10-10%, नो। In that case, only tax in dispute. For example, if any DRC 07 issued with the tax amount, tax demand of 10 lakhs and penalty of 10 lakhs, so in that case, we will pay the pre-deposit only for the 10% of tax dispute of 10 lakhs, not for the penalty. जो पेनल्टी का 10% डिपॉजिट है वो अप्लीकेबल वहीं पे है कि जहां पे ओनली ऑर्डर्स या ओनली डिमांड फॉर द पेनल्टी, there is no tax demand, there is no interest demand in that DRC 07. So in that cases, we have to pay the 10% in the penalty for also. So 3 months 10% of tax dispute pre-deposit requirement, first strategy कि हमको 10% का arrangement कर लेना है, and we have to taken care the maximum limit of the appeal first appeal pre-deposit is 20 crores. It was earlier 25 crores, now it is 20 crores. So now question arrive कि how much pre-deposit need to pay in the first appeal. So आप लोग अभी बोलेंगे कि सर आपने तो अभी बताया कि 20 करोड़ है मैक्सिमम या 10% ऑफ टैक्स डिस्प्यूट। यस, टैक्स डिस्प्यूट का 10% है और मैक्सिमम 20 करोड़ है, बट वी आर लिविंग इन द 1 tax 1 GST like that, but there is not 100% true.
दिस इज नॉट 100% ट्रू, बिकॉज एक CGST एक्ट हम पढ़ते हैं, एक SGST एक्ट पढ़ते हैं और एक IGST एक्ट पढ़ते हैं. सो IGST तो ठीक है, ट्रेवलिंग, बट हमको C और S के प्रोविजंस हमको पैरेलल चलते हैं. सो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं वो 10% ऑफ टैक्स CGST एक्ट के हिसाब से हम कर रहे हैं. सो 10% ऑफ प्री डिपोजिट ऑल्सो रिक्वायर्ड इन द SGST ऑल्सो. सो आपको जो अमाउंट भरना है वो 20 करोड़ है. वो 20 करोड़ मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 20 करोड़ इन C एंड मैक्सिमम 20 करोड़ इन S. इन दैट केस आपको जो टैक्स भरना है वो 10% ऑफ टोटल डिमांड मीन्स आप, और मैक्सिमम 40 करोड़, नॉट 20 करोड़. C का भी 20 और S का भी 20. और ये होगा, ये हुआ हमारी फर्स्ट अपील की प्री डिपॉजिट. अगर हम बात करते हैं, अभी हम नेक्स्ट जाएंगे ट्रिब्यूनल्स पे. अगर हम बात करते हैं ट्रिब्यूनल्स पे, तो ट्रिब्यूनल्स में मींस अगर हम बात करें कि फर्स्ट अपील और सेकंड अपील को ही हम ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं. सो फर्स्ट अपील में भी 10% की प्री डिपॉजिट रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा एडिशन टू दैट 10% हमको 10% और भी भरना है ट्रिब्यूनल्स के टाइम पे. जब हम सेकंड अपील बिफोर ट्रिब्यूनल्स करते हैं, तब GST ट्रिब्यूनल के सामने हम जब अपील फाइल करने जाएंगे तो वहां पे भी 10% है. मीन्स आपकी पेनल्टी, अगर आपकी कोई भी अपील रिजेक्ट होती है, सो वहां पे जो आपने 10% फर्स्ट अपील में जितनी अमाउंट बढ़ी थी उतनी ही अमाउंट आपको सेकंड अपील में भी भरनी पड़ेगी, बिकॉज 10% जो कैप है वो दोनों में है, और 20 करोड़ की लिमिट ट्रिब्यूनल्स के लिए भी है. सो अगर आपकी कोई भी डिमांड है जहां पे आपका फर्स्ट अपील रिजेक्ट होता है, और फर्स्ट अपील में आपने 10 लाख रुपया टोटल C और S मिला के अगर अपने प्री डिपॉजिट भरा है, तो जब सेकंड अपील में हम जाएंगे तो वहां पे भी हमको भरना है 10 लाख रुपये जब प्री डिपॉजिट हो. जो 10 लाख हमने फर्स्ट अपील के भरा है उसके अलावा जो हम अपील के स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, तो जो हमको ग्राउंड्स बनाने हैं या हमको ग्राउंड्स प्रिपेयर करने हैं, तो हाई कोर्ट की प्लीडिंग के अकॉर्डिंगली कि भाई हम हाई कोर्ट में प्लीड करने वाले हैं, उस तरह से बनाने चाहिए. SCN में या एजुकेशन के ऑर्डर्स में या डिपार्टमेंट ने जो ऑर्डर इशू किया या SCN इशू किया, उसमें अगर कोई एरर है तो स्पेसिफिक उसको मार्क किया जाए, स्पेसिफिक उसको हाईलाइट करके बिफोर अथॉरिटी हमको रखना चाहिए. लीगल इंटरप्रिटेशन पे या हमारे कोई जो प्रोसीजरल लैब्स हैं उस पे हमको फोकस करना चाहिए. फिर जो भी चीजें रखें, हमको माइंड में एक चीज लेके चलना चाहिए कि इन केस अगर ये अपील रिजेक्ट हो जाती है तो हमको ट्रिब्यूनल के सामने क्या हम डिफेंड कर सकते हैं, कि हमारे ये ग्राउंड्स है कि भाई हमको ये नहीं सुना गया है. सारे ग्राउंड्स हमको डाल देना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में हम रखेंगे ऐसा कुछ. फ्यूल सैंपल ग्राउंड जैसे अगर हम बात करते हैं तो भाई जुरिडिक्शन से एरर है, कि ऑफिसर कंपिटेंस था, ऑफिसर की पावर में आता है वो नोटिस इशू करना या नहीं आता है, या उसके टेरिटोरियल एरिया से बाहर है, पता चले यहाँ बैठ के उसका एरिया नहीं आता है तो भी उसने ऑर्डर दिया है, उसकी अथॉरिटी है कि नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल CGST में देयर इज अ मॉनेटरी लिमिट टू इशू द शो कॉज नोटिस और एडजुडिकेशन की, लाइक सुपरिटेंडेंट को 20 लाख की पावर है, उसके ऊपर असिस्टेंट या डेप्यूटी कमिश्नर को 2 करोड़ तक की पावर है. सो वेदर वो मॉनेटरी लिमिट्स के अंदर ही है, पता चले सुपरिटेंडेंट ने 50 लाख का तो शोकोज नहीं दिया है. सो ये सारी चीजें हमको हेल्प कर सकती है. उसके अलावा भी हम देख सकते हैं जैसे लिमिटेशन ब्रेच है, अगर टाइम बियॉन्ड द परमिसेबल पीरियड है, फॉर एग्जांपल 73 के लिए 3 इयर्स है या 74 के लिए 5 इयर्स है, बियॉन्ड दैट पीरियड अगर शोकोज है तो ऐसा तो नहीं. उसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि अगर हम ग्राउंड्स की बात करें இவர் பையன் तो தானே ग्राउंड्स பாலிக்கு में என்ன பாலிக்கு இவர் பையன் பேர் என்னது இவர் பேரு இது நானி பல்கிவாலா பேரு. अगर हम ग्राउंड्स में बात करें, कई बार ऐसा होता है कि शोकोज में कुछ अलग एलिगेशन होते हैं या शोकोज में अलग अमाउंट अलग होती है डिमांड की. फॉर एग्जांपल शोकोज खाली 1 लाख रुपए का है, जब आपके पास ऑर्डर इन ओरिजिनल या DRC 07 आता है तो 10 लाख का है. इन दैट केसेस आपका एक सबसे मेन ग्राउंड ये होना चाहिए कि शोकोज कैन नॉट बी ट्रेवल बियॉन्ड द ऑर्डर कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द शोकोज नोटिस. सो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रहनी चाहिए जब हम अपील बना रहे हैं तब. उसके अलावा अगर कोई हियरिंग नहीं दिया है, आपको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हुआ है, तो हम उसको मेन हम ग्राउंड्स बना सकते हैं. उसके
सिवाय अगर आपको कोई शोकोज मिलती है जिसमें आपका रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या ऑन दैट किच ऑन विच बेसिस द एलिगेशन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन यू और क्लाइंट, सो यू कैन पुट इट द एज अ डिफेंस कि भाई हमको ये चीजें मिली नहीं है, तो हम कैसे उसको मान ले या हम कैसे उसको रिवर्ट करें। उसके अलावा जो हमारे टेक्निकल सब्स्टेंटिव मेरिट्स हैं कि वैल्यूएशंस हो गए, आईटीसी की एलिजिबिलिटीज हो गई, एग्जाम्शंस हो गए, ये सारी चीजों को भी हमको रखना चाहिए। अब ये सारी चीजों को कौन से सीक्वेंस में रखना चाहिए या क्या होना चाहिए, कई बार ऐसा होता है जब सबका अपना अपना एक टेक्निक होती है या अपना अपना तरीका होता है कि उसको रिप्रेजेंट करने का। कई लोग पहले टेक्निकल मेरिट से लेते हैं, उसके बाद सब्स्टेंटिव मेरिट से लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक वाइज जाते हैं, कि पैरा वाइज जाते हैं, कि पैरा में हम स्टेच्यूट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद हम वहां पे अपनी मेरिट्स को भी रखते हैं कि भाई दोनों चीजों। आफ्टर दैट एक है वन की प्रोसीजरल लैब, जैसे कि कोई ऑर्डर है आपका, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है, आपने शोकोज को आपने पूरी दिन रात लगा के आपने रिप्लाई दिया, रिप्लाई के बाद ऑर्डर उसने ऑर्डर में उसको कंसीडर ही नहीं किया, या उस पे उसने कोई कमेंट ही नहीं दिया कि वाई योर ऑर्डर योर रिप्लाई हैज नॉट बीन कंसीडर या नॉट मेंटेनेबल। सो वहां पे आप ये बोल सकते हो कि भाई ये नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है। सो सेक्शन 75 में अगर उसको आपने अपॉर्चुनिटी मांगी है, आपको नहीं दिया गया, या लेस देन प्रिस्क्राइब लिमिट दिया गया कि एक ही अपॉर्चुनिटी दिया और उसने ऑर्डर पास कर दिया, सर इन दैट केसेस ये सारे सैंपल ग्राउंड है जो हम फर्स्ट अपील में भी ले सकते हैं और सेकंड अपील एज वेल। तो जो भी ग्राउंड्स हम लेते हैं उसको स्पेसिफिक कोई लीगल उसका सिटेशन होना चाहिए या फैक्चुअल एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, पता चले हमको 3-3 पीएच मिल चुकी है, सो वहां पे हमको फिर बैकफुट में हमारा ग्राउंड या हमारा जो डिफेंस है वो कमजोर पड़ जाता है। सो हमको सारी चीजों को देख के, फैक्चुअल एविडेंसेस को देख के ही करना चाहिए। अभी तक हमने जो देखा है कि ट्रिब्यूनल तक की जर्नी, कि भाई क्या क्या था ट्रिब्यूनल तक। जैसे अभी पहले क्या प्री एजुडिकेशन स्टेज, प्री एजुडिकेशन स्टेज में हमने देखा सेक्शन 61 की स्क्रूटनी, 63, फिर 65, 67 और 70 की में और इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद 73 या 74 में आपकी नोटिस आएगी, तो नोटिस आने के बाद उसको हम एजुडिकेट करवाएंगे। जैसे ही मैटर एजुडिकेट होगा, अगर आपका ऑर्डर फेवर में आ गया तो बढ़िया है, आप अपील में नहीं जाओगे, डिपार्टमेंट अपील में जा सकता है। अगर डिपार्टमेंट अपील में नहीं जा रहा है और अगर आपके फेवर में नहीं है मैटर, तो आप अपील में जाओगे, बट ऑब्वियस है। और आप अपील में जाते हैं तो 107 में, तो 107 में जब हम अपील में जाते हैं उसके बाद दो ही चीजें हैं, या तो अपील आपकी एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। अगर आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो ट्रिब्यूनल में डिपार्टमेंट जाने की तैयारी करेगा भाई। और अगर ट्रिब्यूनल आपकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो आप ट्रिब्यूनल में जाने के लिए प्रिपरेशन करेंगे। एक मैंने कहीं पढ़ा था एक गोल्डन रूल की, फाइल टुडे एज इफ इट विल बी रीड बाय द सुप्रीम कोर्ट टुमारो। हमको कोई भी फाइल या कोई भी प्रिपरेशन इस तरह से करना है कि भाई वो कल को सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जाएगा, इस तरह से हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम आ जाते हैं मेन हमारे टॉपिक पे, ट्रिब्यूनल जीएसटी एक्ट। जो अगर हम एक्ट की बात करें, प्रोविजंस की बात करें, तो सेक्शन 109 में उसको वहां से स्टार्ट होती है ट्रिब्यूनल की सेक्शन 109 से लेके 114 तक, 109 से 109 में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस। सो वहां पे 109 में दिया है कि भाई कुछ उसमें से हाइलाइट्स में ले रहा हूँ, बाकी सब चीजें हमने यहाँ पे नहीं लिया है। एक उसमें से इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसकी प्रिंसिपल बेंच बैठेगी वो दिल्ली में बैठेगी अपीलेट ट्रिब्यूनल की, और वो ऑलरेडी चालू भी हो चुकी है। उसमें 171 एंटी प्रॉफिटिंग के मैटर्स भी सुने जा रहे हैं, 2-3 ऑर्डर्स भी आ गए हैं जहां तक देखा। सो प्रिंसिपल बेंच अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की दिल्ली में होगी। सेकेंड चीज, एनी इशू अगर कोई भी मैटर, कोई भी जो ट्रिब्यूनल्स के मैटर है या कोई भी जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके इशू होगा, पीओएस को लेके इशू हो, तो वो खाली प्रिंसिपल बेंच ही उसको सुनेगी। हम या चाहे वो गुजरात का मैटर हो, महाराष्ट्र का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, अगर उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके है तो स्टेट बेंच नहीं सुनेगी उसको, प्रिंसिपल बेंच के सामने ही आपको फाइल करना है। स्टेट बेंचेस में कौन से मेंबर्स होंगे या कितने मेंबर्स होंगे, तो उसके लिए दिया गया 2 जुडिशियल मेंबर्स होंगे, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट से होगा, एक टेक्निकल मेंबर सेंट्रल से होगा। मींस 4 मेंबर्स होंगे टोटल स्टेट की बेंचेस में।
matters referred to subsection 2 of 171 shall examined or adjudicated only by the principal bench. प्रिंसिपल बेंच के सामने और 171 के मैटर जाएंगे जो एंटी प्रॉफिटिंग है. अपील्स वेयर डिस्प्यूट अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50 lakhs. अगर कोई भी अपील मींस सेकंड अपील की हम बात करें कि अपील वेयर जहां पे डिस्प्यूट 50 लाख से कम की अमाउंट का है, चाहे वो आईटीसी का हो, टैक्स 1(3)B का हो या व्हाटएवर, अगर 50 लाख से कम की अमाउंट का है तो वो विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन विल बी हियर्ड बाय ए सिंगल मेंबर ऑफ द बेंच. मींस वो सिंगल बेंच की ट्रिब्यूनल या सिंगल बेंच मेंबर वो सुन सकते हैं केसेस. फिर हम सेक्शन 1110 में आते हैं. सेक्शन 110 बताता है कि उस जो प्रेसिडेंट है और उनके मेंबर्स होंगे ट्रिब्यूनल्स के, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के, उसके क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट कंडीशंस, उनकी सर्विस का ट्रेन्यूअर, सारी चीजें. तो हम उस पर ज्यादा नहीं जाते हैं, वो बेयर एक्ट में लिखा है. सेक्शन 1111 मेन सेक्शन 111 में अगर हम बात करते हैं तो 111 में प्रोसीजर बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल. अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो प्रोसीजर है वो लाइक अ सीपीसी अगर हम बोले या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल कोर्ट के जैसा ही है. while appellate tribunal shall not, while disposing on any proceeding before it or an appeal before it, bound to be procedure laid down in the code of civil procedure. So जो सिविल प्रोसीजर सीपीसी में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही इनको ऑर्डर को डिस्पोज करना है. अब हम मेन सेक्शंस आते हैं. सेक्शन 112 जहां पे हम अपील करेंगे अपीलेट अथॉरिटी के सामने, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के सामने. जो सेकंड अपील की बात करते हैं, सो सेकंड अपील है जो 112 में हम अपील एनी पर्सन, हम पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है सेक्शन 112(1) में सबसेक्शन 1 ऑफ 112. एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर पास्ड अगेंस्ट हिम अंडर सेक्शन 107 और अंडर सेक्शन 108 of the act may appeal to the appellate tribunal against such order within 3 months from the date on which order sought to be appealed against is communicated. I am repeatedly saying that कि हमको जो टाइम लिमिट दिया गया है अपील फाइल करने की, चाहे वो 107 में हो चाहे 112 में हो, वो विद इन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर्स कम्युनिकेटेड टू अस, not from the date of order. So as a professional we have to take care कि जब हम अपील फाइल करते हैं तो डेट ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी राइटली मेंशन. अगर हम वहां पे गलत लिख देते हैं या वहां पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी अपील वैसे ही उड़ जाएगी. सो यहाँ पे लिखा कि 107 या 108 का कोई भी ऑर्डर है कि जिसको हमको ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट अगर करना है तो विद इन 3 months में हमको करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड. अब जैसे अगर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि सर अभी हमारे पास ऑर्डर आ गया, अब कैसे भरे अपील, तो अभी तो ट्रिब्यूनल चालू नहीं हुआ है. सो बहुत सारे या तो पहले के ऑर्डर हैं कि जो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है फर्स्ट अपील, लेकिन अभी तक हम ट्रिब्यूनल नहीं जा सके बिकॉज वो फंक्शन ही नहीं अभी. सो इन दैट केसेस अभी लास्ट मंथ 24 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर आया जीएसटी एक्ट का, जिसमें शेड्यूल दिया हुआ है कि भाई कौन सा ऑर्डर कब का होगा तो आपको कब तक अपील फाइल करनी है बिफोर, क्योंकि पोर्टल अभी ई फाइलिंग उसका मोड चालू हो गया, वो हम लास्ट में देखेंगे. अब हम चलते हैं सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 112. ट्रिब्यूनल में रिफ्यूज टू एडमिट द अपील वेयर इन्वॉल्व्ड अमाउंट इज लेस देन 50,000. अगर कोई अमाउंट जहां पे हम अपील कर रहे हैं उसकी अमाउंट 50,000 है तो मे रिफ्यूज टू एडमिट दैट अपील. सो ट्रिब्यूनल में रिफ्यूज कि भाई उसको वो 50 से ज्यादा तो रिफ्यूज कर देगी, भाई नहीं ये अपील मेंटेनेबल नहीं. थर्ड सेक्शन सब सेक्शन 3 ऑफ 112, डिपार्टमेंट में अपील द ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर विद इन 6 months. यहाँ पे देखिए वहां पे हमको सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 112 में दिया गया था कि अगर कोई अपील करनी है टैक्स पेयर को 10 ऑर्डर अगेंस्ट 107 और 108 में का ये, सो वहां पे हमको विद इन 3 months दिया था. बट डिपार्टमेंट को जो है वो 6 months है कि जहां पे जैसे 107 में भी डिपार्टमेंट को 6 महीना दिया था, यहाँ पे भी 6 महीना, कि अगर कोई आपको अपील ऑर्डर मिलता है जो फेवर में है, टैक्स पेयर के फेवर में है,
तो डिपार्टमेंट में अपील दैट ऑर्डर अगेंस्ट दैट ऑर्डर एट ट्रिब्यूनल विद इन 6 months। अब यहाँ पे हमको एक नया है, जहाँ पे 107 में हमको कुछ नहीं देना था, यहाँ पे एक क्रॉस ऑब्जेक्शन है, सब सेक्शन 5 of 112। जब भी हम अपील फाइल करते हैं तो एक हमेशा अपील में एक होता है रिस्पोंडेंट और एक हम होते हैं अपीलेंट। अपीलेंट और रिस्पोंडेंट, तो अपीलेंट तो हम ग्राउंड्स ऑफ अपील सबमिट करेंगे, तो इन दैट केसेस हम एक क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना होगा बाय द रिस्पोंडेंट, कि जैसे अगर हम फाइल करते हैं एज अ क्लाइंट, हम कोई अपील फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट उस पे रेवेन्यू अथॉरिटी जो होगी वो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करेगी टू द ट्रिब्यूनल विद इन 45 days। सेम मैनर में अगर डिपार्टमेंट कोई अपील जाती है हमारे अगेंस्ट में, तो हम रिस्पोंडेंट होंगे उस अपील में और हमको क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना है उस अपील के अगेंस्ट में जो डिपार्टमेंट ने फाइल की। सबसेक्शन 6 of 112 ये बोलता है कि हमको ट्रिब्यूनल में एडमिट एंड अपील विद इन 3 months आफ्टर द एक्सपायर ऑफ, कि अगर हमको कोई जो 3 महीने का टाइम दिया है वो 3 महीने का टाइम लैप्स हो जाता है और उसके हम 5वें महीने में जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पे भी अपील ट्रिब्यूनल जो है डिपार्टमेंट की या हमारी अपील ले सकता है। मींस कॉन्डोनेशन पीरियड जो दिया हुआ है ट्रिब्यूनल्स के लिए वो 3 महीने दिया हुआ है, जो कि जो फर्स्ट अपील में 107 में 30 days का था, यहाँ पे 3 महीना दिया हुआ है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में एडमिट द अपील एंड विद इन 3 months आफ्टर द एक्सपायरी। जो हमको सब सेक्शन 1 में टाइम लिमिट दी है उसके बाद भी हम अगर जाएंगे तो 3 महीने के अंदर अपील ले सकता है। सबसेक्शन 7 of the 112 and appeal to appellate tribunal shall be in such form in such manner and shall accumulate by such fees। अब अभी तक हमने जो अपील देखा या सो कुछ देखा, वहां पे कोई भी फीस नहीं पे करनी थी गवर्नमेंट को, लेकिन जब हम अगर सेक्शन 112 सब सेक्शन 7 की बात करते हैं, तो अगर हम कोई भी, जैसे अभी हम ट्रिब्यूनल में फाइल करते हैं सेस्टेट में सर्विस टैक्स के केसेस में, एक्साइज के, कस्टम के केसेस में, तो वहां पे भी, या जैसे अभी हमने पढ़ा कि भाई ये एक सिविल कोर्ट प्रोसीजर के हिसाब से चलेगी, सीपीसी के हिसाब से, तो यहाँ पे भी उसी मैनर में आपको फीस भरनी है, प्रिस्क्राइब फीस दी हुई है कि अगर हम कोई भी अपील फाइल करते हैं बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल तो वी हैव टू पे गवर्नमेंट फीस। ये फीस जो है वो प्री डिपॉजिट से अलग है। प्री डिपॉजिट और फीस का कोई लेना देना नहीं है। प्री डिपॉजिट हमको रिफंडेबल है, फीस हमारी नॉन रिफंडेबल है। सो सबसेक्शन 8 में बोला गया है नो अपील शैल बी फाइल्ड अगर अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस द अपीलेंट हैज पेड एडमिटेड अमाउंट। अगर हमने कोई अमाउंट एडमिट की है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग या अपील में, सो हमको एडमिटेड अमाउंट भी पे करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट 10% ऑफ रिमेनिंग, जो एडमिट अमाउंट है वो पे करने के बाद जो हमारी डिस्प्यूटेड अमाउंट बचती है उसका 10%, या अगर हमारी कोई खाली पेनल्टी ओनली फॉर द पेनल्टीज ऑर्डर, सो वहां पे हमको पेनल्टी के लिए भी 10% भरना है। अगर कंबाइंड है टैक्स और पेनल्टी दोनों का एक ही ऑर्डर है तो हमको 10% टैक्स का देखना है। सो ये जो 10% भरना है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये 10% हमारा 107 में जो हमने पे किया है उससे अलग है। इसको कंबाइन है, मीन्स हमको अगर हम ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर रहे हैं वहां तक हमको एटलीस्ट हमारा 20% तो भरा हुआ होना चाहिए। 20%, 10% 107 में, 10% 112 में। और जैसे ही हम अगर 112 सबसेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 112 में जो 10% ऑफ प्री डिपॉजिट अमाउंट भर देते हैं और अपील फाइल कर देते हैं, दैट मीन्स हमारी रिकवरी प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली स्टे हो जाएगी अंटिल द डिस्पोजेबल ऑफ द अपील बिफोर ट्रिब्यूनल। कि मीन्स अगर कोई डिपार्टमेंट अपील, हम अपील में चले जाते हैं और डिपार्टमेंट कोई रिकवरी करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता जब तक वो हमारी अपील डिस्पोज नहीं होती। 113 में लिखा हुआ है कि भाई ऑर्डर्स ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि हमको ऑर्डर है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टी टू अपील एंड अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, कि हमको वो अपील, जो हम अपील दोनों पार्टीज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे, उसके बाद वो जो ऑर्डर देंगे उसमें कंफर्म कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं,
उसको हटा सकते हैं। ऑर्डर अपील अगेंस्ट में रिफर केस बैक टू अपीलेट अथॉरिटी, कि अपीलेट अथॉरिटी को भी वापस वो रिमांड बैक कर सकते हैं, या ओरिजिनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी वो भेज सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो उनको ऑर्डर कंफर्म या रिजेक्ट या एक्सेप्ट ही करना है, नहीं, वो रिमांड बैक भी कर सकते हैं, बट 107 में रिमांड बैक की पावर नहीं है। सेक्शन 113 वापस आगे देखते हैं, तो उसके बाद हम बात करते हैं, अगर कोई सफिशिएंट कॉज है तो ट्रिब्यूनल्स आपको एडजॉर्नमेंट दे सकती है 3, प्रोवाइडेड दैट नो सच एडजॉर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम्स टू पार्टी ड्यूरिंग द हियरिंग, कि अगर हमको कोई हियरिंग आती है तो हम एडजॉर्नमेंट डालते हैं तो वो 3 मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम 3 तो दे ही सकते। सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं अभी उसके फाइलिंग मैकेनिज्म पे आ जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स की हम फाइलिंग कैसे चलेगी या उसका प्रोसीजर क्या है, फॉर्म क्या है, उसकी टाइमलाइंस क्या है। जैसे टाइमलाइंस तो हमने अभी पीछे देखा एक बार, वापस हम उसको रिवाइज करते हैं। फाइलिंग में पहले अगर हमको ट्रिब्यूनल पे फाइल करना है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स के लिए हमको ये ध्यान रखना है कि जीएसटी एक्ट जो जी स्टेट की वेबसाइट है, वो जीएसटी की वेबसाइट और जी स्टेट की वेबसाइट दोनों अलग अलग है। अभी तक क्या था कि जो हमारी प्रोसीडिंग 1 आता था, 1A आता था, हमको 7 आता था, 7 से हम अपील करते थे 107 में, वो सारी चीजें हमारी gst.gov पे ही है। लेकिन इसका पोर्टल अलग है, इसका पोर्टल अलग से बन चुका है, ऑलरेडी लाइव हो चुका है फॉर द पर्पज ऑफ ओनली फॉर द ई फाइलिंग ऑफ अपील्स। सो ई फाइलिंग हमको करना है, फाइल ऑन जीएसटी पोर्टल यूजिंग, हमको कौन सा फॉर्म भरना है, APL 05 विथ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मैनुअल फाइलिंग ओनली विद द रजिस्टर परमिशन प्रो। सो हमको अपील जो भी फाइल करनी है वो हमको पूरी की पूरी ऑनलाइन ही करनी है, देयर इज नो मैकेनिज्म टू फिजिकल फाइल। 7 दिन का एक रूल दूसरा है कि अगर हम अपील फाइल करते हैं तो हमको 7 डेज के अंदर हमारी जो सर्टिफाइड कॉपी है या हमको जो प्रिंटेड कॉपी है वो जमा करानी है बेंच में। अगर हम 7 दिन के बाद कराते हैं तो वो डेट मानी जाएगी जो 7 दिन के बाद वाली। फाइनल एक्नॉलेजमेंट हमको APL 02 में मिलेगा। क्रॉस ऑब्जेक्शन जैसे मैंने बताया कि क्रॉस ऑब्जेक्शन हमको फाइल करना है, किसको, रिस्पोंडेंट को करना है। अगर हम अपील फाइल कर रहे हैं तो हम क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं फाइल करेंगे। क्रॉस ऑब्जेक्शन कौन फाइल करेगा, रिस्पोंडेंट, सामने वाला करेगा। कितने दिन में, विद इन 45 डेज में, APL 06 में विद इन 45 डेज प्लस 45 डेज और कॉन्डोनेशन हो सकता है ऑन विद द परमिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल या बेंच। बोल सकते हैं कि भाई 45 दिन मीन्स 90 डेज के अंदर उसको टोटल APL 06 में उसको क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना है। उसके बाद इंटरिम रिलीफ अगर अलग से आपको कोई चाहिए तो आप फॉर्म 01 भरेंगे। फी स्ट्रक्चर और फी प्री डिपॉजिट रिक्वायरमेंट। फी स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी बताया कि भाई यहाँ पे अगर हम ट्रिब्यूनल्स में अपील के लिए जाते हैं तो फी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, मीन्स फीस आपको भरना है। अगर विदाउट पेइंग द फीस हम अपील फाइल नहीं कर सकते। इवन अब तो ऑनलाइन है तो सब कुछ भारत कोष की वेबसाइट पे ही होगा पेमेंट। जो एक्ट में या जो प्रोविजन जो लिखा हुआ प्रोविजन दिया हुआ है जीएसटी में, उसके लिए जो फीस प्रिस्क्राइब्ड है उस स्टैंडर्ड रेट है 1000 रुपीज पर लैख ऑफ टैक्स और डिस्प्यूटेड ITC। मीन्स अगर आपका कोई डिमांड 1 लाख रुपए का है डिस्प्यूट तो उसके पीछे आपको 1000 रुपया फीस भरनी है। अगर और मिनिमम आपको 5000 भरनी। सो अगर आपका 5 लाख का ऑर्डर है तो उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना है। अगर आपका 1 लाख का है तो भी 5000 बने, और मैक्सिमम फीस है 25,000। और ये जो फीस है वो CGST एक्ट की है। सो सेम फीस प्रपोज्ड होगी या इम्पोज्ड होगी ऑन SGST ऑल्सो। सो हम अगर क्लाइंट को बोल रहे हैं या क्लाइंट को एडवाइस कर रहे हैं आज की डेट में कि भाई कितनी फीस लगेगी, क्योंकि अभी तक ऑनलाइन मॉड्यूल चालू हुआ है लेकिन शायद आई थिंक बहुत कम लोगों ने अपील फाइल की होगी, या किसी के पास अभी पुराने ऑर्डर्स नहीं होंगे जो 2022 के अभी टेबल चालू हुआ है, जो विंडो चालू है। सो वहां पे हमको मिनिमम फीस 5000 CGST, 5000 S मीन्स 10,000 मिनिमम तो फीस लगनी ही है ट्रिब्यूनल के केस में, और मैक्सिमम 25 25। और जहां पे नो डिमांड मीन्स कोई टैक्स, कोई इंटरेस्ट, कोई पेनल्टी की डिमांड नहीं है, वैसे ऑर्डर अगर हम अपील में जाते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो कोई एडवांस रूलिंग का ऑर्डर है, वहां पे अगर हम कोई जाते हैं जहां पे, तो वहां पे मिनिमम 5000 मीन्स आपको 5000 तो भरना ही है।
प्री डिपॉजिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पिछले स्लाइड्स में कि भाई आपको 10% दोनों में भरना है और मैक्सिमम 20 करोड़ से। अब हियरिंग प्रोसीजर पे हम आते हैं और एविडेंसेस रूल्स। ये मैं स्टार्टिंग जब मैंने किया सेशन का तब से ही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब जो मैंने 61 बताया कि सेक्शन 61 में स्क्रूटनी के टाइम पे हमको क्या इंपॉर्टेंस चीजें ध्यान रखनी है या क्या उसका इंपॉर्टेंस है एट द टाइम यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स की अपील, क्योंकि हियरिंग एविडेंसेस के जो भी रूल्स दिए गए हैं उसमें क्लियरली लिखा है अभी कि भाई नो एडिशनल नो न्यू एविडेंस इज जनरली नॉट परमिटेड। रूल 112 ऑफ CGST रूल्स जो विच प्रोवाइड द प्रोसीजर या एविडेंसेस रूल्स रिगार्डिंग टू द अपील टू द ट्रिब्यूनल्स, वहां पे क्लियरली लिखा है कि न्यू एविडेंसेस नॉट परमिटेड अनलेस बेंच को अगर लगता है कि हाँ ये करनी चाहिए, मीन्स ये उनके खुद के ऊपर है, बेंच के मेंबर्स को लगता है कि अलाउ करना चाहिए तो करेंगे, नहीं तो आप नहीं कर सकते। सो मैं फर्स्ट स्लाइड से मैं बता रहा हूँ या फर्स्ट मेरे सेशन से स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि अगर हम कोई भी मैटर्स को ऑन द रिकॉर्ड ले आते हैं, प्ले रिकॉर्ड पे रखते हैं कि भाई हमने ये तो दिया था बट हमको इग्नोर किया गया, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा जब हम ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे। क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में हम नॉट ऑन टेक्निकल मेरिट्स, हम उसकी प्रोसीजर पे भी बात करेंगे, स्टेच्यूट पे भी बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने स्टेच्यूट को फॉलो नहीं किया या उसके प्रोसीजर जो दिया गया है, रूल्स दिए हुए हैं उसको इग्नोर करके ये डायरेक्टली उसने ये बाईपास करके डायरेक्टली ये किया है। सो अगर हम हियरिंग मोड्स की बात करें तो फिजिकल और वर्चुअल दोनों अलाउड है, बट वो बेंच के ऊपर डिपेंड करता है, उनके डिस्क्रिप्शन पे है कि भाई कौन क्या अभी सेटिंग आवर्स वगैरह सब आएगा, अभी नोटिफाइड नहीं हुआ है। डेली कॉज लिस्ट पब्लिश होगी कि भाई कल कौन से मैटर्स हैं, कल कौन परसों कौन से हैं। एडजॉर्नमेंट लिमिट्स दी हुई है कि भाई कौन से कितने एडजॉर्नमेंट आप ले सकते हैं या कितने नहीं लेना चाहिए। एविडेंसेस पे जैसा है कि न्यू एविडेंसेस नहीं आने चाहिए। सो क्योंकि हम जो अपील करते हैं, अपील का सबसे एक ही ग्राउंड है कि भाई हमको लोअर अथॉरिटी ने सुना नहीं या हमको कंसीडर नहीं किया गया, तो ऑन दैट ग्राउंड हम अपील करते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हमको जब हम अपील एजुकेशन में थे तो हमारे पास एविडेंसेस नहीं थे, क्लाइंट ने पेपर नहीं दिए थे और अब हमको क्लाइंट ने पेपर दे दिया तो अब हम आपके पास आए, नहीं। हम अपील उसी ग्राउंड पे करते हैं कि जो लोअर अथॉरिटी थी या एजुकेशन अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने हमारे डॉक्यूमेंट्स को, हमारे एविडेंसेस को किया और ये ऑर्डर पास कर दिया। सो हम उससे उसके अगेंस्ट में अपील आते हैं। सो हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमारे नए एविडेंसेस कंसीडर करो और हमको मैटर को ड्रॉप करो। सो हमेशा जब हम फर्स्ट अपील में जाते हैं या सेकेंड अपील में जाते हैं तो अथॉरिटी यही पूछेगी कि आपने ये सारी चीजें लोअर अथॉरिटी को क्यों नहीं दी। अगर हम फर्स्ट अपील में जाते हैं तो वो बोलेगा आपने एजुकेशन वालों को क्यों नहीं दी। हम सेकेंड अपील में है तो वो वही पूछेंगे कि आपने एजुकेटिंग अथॉरिटी को ये क्यों नहीं दिया, आपने फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को ये सब क्यों नहीं दिया। सो हमको एज अ प्रोफेशनल हमको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सी एविडेंसेस हमको कब क्रूशियल है, कौन सी चीजें हमको रखनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड रखनी। ट्रिब्यूनल्स की पावर क्या है? ट्रिब्यूनल्स की पावर जैसे मैंने बताया भाई सिविल कोर्ट के हिसाब से अंडर CPC उसी तरह से चलेगी, लाइक सिविल मिनी सिविल कोर्ट में बहुत से मैटर चलते हैं, यहाँ पे टैक्स के मैटर चलेंगे या GST के मैटर ही चलेंगे। सो ये सिविल कोर्ट जैसी पावर है इनकी। अब हमारे लिए क्या एक्शन प्लान है, मैंने मेरे हिसाब से सजेशंस कुछ रखे हैं या कुछ पॉइंट्स रखे हैं कि जो हमको हेल्प कर सकते हैं कि टू गोइंग बिफोर द ट्रिब्यूनल्स या गोइंग बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी। जैसे अभी आज हमको अपील है करनी है या हमारे पास कोई अपीलेट फर्स्ट अपील का ऑर्डर आता है या 108 में रिवीजन का ऑर्डर आता है तो हमको उसकी प्री डिपॉजिट करनी है। अगर कोई मैक्सिमम कैप लगता है तो मैक्सिमम कैप के साथ उनको बताना है कि भाई कैश, और दूसरा कैश में क्रेडिट में कैसे भरना है, वो सारी अरेंजमेंट से आज हमको कर लेनी चाहिए। इवन क्लाइंट्स को टाइमली इंटीमेट करते हैं, क्योंकि अमाउंट प्री डिपॉजिट की जो है अगर क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं है तो हमको अरेंज करने में भी टाइम लगेगा। एंड बिफोर फाइलिंग एनी अपील और एनी सोकोज हमको ये
हैबिट डेवलप कर लेनी चाहिए कि हम उनके DRC 03 चेक कर ले। कई बार क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट जो है वो मिड ऑफ द ईयर या बीच में से आता है, जैसे अभी 8 साल GST को हो गया, वो उसके पहले कोई और जा रहा है और कोई कर रहा है, तो उस टाइम पे हमको ध्यान नहीं होता कि भाई इसमें कोई पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो हमको एक हैबिट या ये हैबिचुअल प्रैक्टिस ही कर लेनी चाहिए कि भाई कोई भी क्लाइंट हमारे पास आता है तो उसके अभी तक के जितने DRC 03 है वो डाउनलोड करके रख लेनी चाहिए। उससे होगा क्या कि अगर कोई पेमेंट है कि जो उसने ऑलरेडी, क्योंकि क्लाइंट को भी याद नहीं रहता है आएगा कि भाई ये फॉर एग्जांपल बिल किसका है, ये हमने कोई भरा हुआ है, तो हम क्लाइंट का रेवेन्यू उतना हम सेव कर सकते हैं जो प्रोफेशनल कि भाई हम उसका ऑलरेडी पैसा हुआ है तो हम क्यों वापस डबल भरवाएं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो क्लाइंट बहुत सारी चीज को ऐसा लगता है कि नहीं भरा है या क्लाइंट का कंसल्टेंट भर दिया होगा, उसको पता ही नहीं है। ये ऑलरेडी हमको ITC का एलिगेशन आता है 1 में कि भाई आपने इतना ITC एक्सेस लिया है 3B2A का, पता चला कि हमने जब एनुअल रिटर्न भरा है GST 9 उस टाइम पे ही हमने रिवर्स कर दिया है। सो दीज स्मॉल प्रैक्टिस या हैबिट विल डेफिनेटली हेल्प इन अवर डे टू डे प्रैक्टिस। स्टैंडर्डाइज हमको फॉर्मेट जो है स्टैंडर्डाइज कर लेना चाहिए अभी से। जैसे हमको क्या स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स है, ग्राउंड्स ऑफ अपील है, वर्ड में उसकी इवेंट लिस्ट है, एनेक्सर्स है, इंडेक्स है, अथॉरिटीज कौन सी हो सकती है, ये हमारे अभी से अगर हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये बहुत सारे टाइम हमारा बचा सकते हैं जब हम बनाने बैठेंगे। क्योंकि जब हम अपील बनाने बैठते हैं तो हमारे पास उसके ग्राउंड्स पढ़ने के लिए टाइम, ये सारे हम फॉर्मेट सेट करने जाएंगे तो एक अपील में वो एक महीना लग जाएगा। अथॉरिटी लेटर हो गया, वकालतनामा हो गया, भाई साइन कर रख लिया तो क्लाइंट, हमको भी श्योरिटी हो गई कि क्लाइंट हमारे पास ही रहने वाला है या हम उसके बिहाफ पे हम कुछ फाइल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सर्टिफाइड कॉपी के लिए जाते हैं तो डिपार्टमेंट बोलता है नहीं, हमको ये पहले भाई अथॉरिटी लेटर लेके आओ। सो हमको ये सब चीजें अगर हमको पता है कि भाई हमको करना ही है, 3 महीने का टाइम लिमिट दिया या 6 महीने का टाइम है, तो हम आज से ये सब प्रिपेयर करके हमारा बाद में जो प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ पेंडिंग अपील टू बी फाइल बिफोर, जैसे अभी 24 सितंबर को जो एक ऑर्डर आया है कि जिसमें शेड्यूल दिया हुआ है, ये शेड्यूल इस तरह से कुछ है कि इसके अकॉर्डिंगली अगर हमारे पास बहुत सारे पेंडिंग अपील्स हैं या बहुत सारे 107 या 108 के रिवीजन ऑर्डर्स हैं, तो उस केस में हम उसके लिस्ट आउट कर सकते हैं कि भाई कौन सी अपील की कौन सी ड्यू डेट्स है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई कोई भी ऑर्डर है 107 में जो 31 जनवरी 2022 से पहले वो इश्यू हो चुका है, तो उस केस में हमको कब से कब 24 सितंबर से लेके 31 अक्टूबर तक के टाइम लिमिट में आपको अपील फाइल कर देनी है। और एक इंटरेस्टिंगली चीज ये है कि अगर हम अपील आज अभी जो ई फाइलिंग विंडो किसी ने अगर ट्राई किया होगा, जिस या लेटेस्ट ऑर्डर का ARN डालते हैं जो अपील रिजेक्ट हुई है, फॉर एग्जांपल 2025 का कोई ऑर्डर डालते हैं तो वो नहीं लेगा। वो विंडो ने उस तरह से उसमें कैप रखा है कि जो जनवरी 2022 के पहले के ऑर्डर्स होंगे वही वो लेगा। फिर उसके बाद जो टाइम सेकेंड लॉग में है कि भाई 1 फरवरी 2022 और से 28 फरवरी 2023 मीन्स ऑलमोस्ट 1 महीना, सॉरी 1 साल और 1 महीना, मीन्स नेक्स्ट ईयर में आपको फाइल कब करना है, नवंबर मंथ में, 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। थर्ड वन की भाई 1 मार्च 2023 से 31 जनवरी 2024 तक आपको दिसंबर मंथ पूरा दिया है फाइल करने को। फरवरी 2024 से मई 2024 तक, ये देखिए जिस तरह से आप देखेंगे ना तो पीरियड जो है, जैसे पहले दिया है फर्स्ट में 31 जनवरी 2022, उसके बाद 1 साल, मतलब ऑलमोस्ट 13 महीना दिया है। सो इसमें ये ऐसा क्यों है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी उतने ऑर्डर डिस्पोज ही नहीं करी थी। ये अगर हम 2022 के पहले की बात करें तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत कम लोगों के पास ऐसे ऑर्डर्स होंगे कि जो 107 में उस टाइम पे हुए हैं। सो धीरे धीरे अगर हम देखते हैं तो टाइम, जैसे 4 नंबर पे अगर हम देखें तो फरवरी, मार्च और अप्रैल में 4 महीने दिया है, बिकॉज उस 4 महीने में बहुत सारे लास्ट ईयर में बहुत सारे अपील डिस्पोज हुई है। उसके बाद जून से लेके मार्च तक दिया है, उसमें 1 फरवरी से लेके आपको भरना है। अगर अभी लास्ट टू लास्ट अगर 31 मार्च 26 तक नहीं भरा है
तो आपको 1 मार्च के बाद भर देना। और उसके बाद फाइनल एक है कि भाई बिफोर 1 अप्रैल 2026 मीन्स अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले आपका कोई भी फर्स्ट अपील का या रिवीजन के ऑर्डर है 107 या 108 में, तो आपको उसकी लेटेस्ट में आपकी अपील 30 जून 2026 से पहले भरनी चाहिए, भर देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपका कोई ऑर्डर 1 अप्रैल 2026 के बाद आता है तो उसमें वही टाइम लिमिट अप्लाई होगा जो 1121 में लिखा है, विद इन 3 months ऑफ दैट ऑर्डर communicated to us. So that's all from my end. Any questions or any feedback from the participants or हेलो सर। हेलो। yes sir, yes हाँ, sir. एक क्वेश्चन ऐसा है सर, उसमें आपने डिपॉजिट बोला है, आइदर इट कैन बी हाँ. पेड इन कैश और क्रेडिट, तो व्हाट टाइप हाँ. ऑफ द क्रेडिट विल बी अवेलेबल ऑन द पोर्टल? I'm not getting your means. आपके पास कौन सी क्रेडिट है, मीन सी और एस? मैंने 25,000 रुपये भरना है मैक्सिमम, और 5,000 पर लाख के हिसाब से भरना सर है। वो फीस है, वो फीस है, वो फीस है। अच्छा, तो वो क्रेडिट जो पैसा भरना है, तो क्रेडिट में अवेलेबल है, आईटीसी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, वो जो प्री डिपॉजिट भरना है 10% और 20 करोड़ मैक्सिमम, वो आपको आईटीसी से भर सकते हैं या कैश से भर सकते हैं, बट जो फीस है वो तो आपको गवर्नमेंट की फीस आपको कैश में भरनी पड़ेगी बैंक थ्रू। अच्छा। जो 5,000 और मैक्सिमम 25,000 है, मिनिमम 5,000 है, वो हमारी गवर्नमेंट की मीन्स कोर्ट फीस बोलते हैं ना, अगर हम कोर्ट में कोई अच्छा। फाइल करते हैं या कोर्ट केसेस में, तो वहां पे जो फाइल करते हैं वो कोर्ट, वो फीस हो गई जो हमको गवर्नमेंट भारत को उसकी वेबसाइट पे भरना है। अच्छा, हाँ, ठीक है। और जो प्री डिपॉजिट है वो अलग है, प्री डिपॉजिट हम आईटीसी यूज कर सकते हैं, बट फीस के लिए तो हमको कैश से ही भरना है। तो आईटीसी कैन नॉट बी यूज फॉर फीस डिपॉजिट? नो सर, नो। ओके। इवन आईटीसी प्री डिपॉजिट का जो मैटर है वो भी अभी कोर्ट में पेंडिंग ही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक के केस में अलाउड किया है, अभी बहुत सारे चेंजेस केसेस में अगर हम देखेंगे तो सीजीएसटी अथॉरिटी ने ऑलरेडी उसको रिजेक्ट किए हुए हैं कि प्री डिपॉजिट कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द क्रेडिट लेजर, बट वो हम कर सकते हैं बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो यस। और कोई? आई थिंक मैंने जो समझाया या मैंने ट्राई जो किया समझाने की, वो सब लोगों को पहुंचा होगा, क्योंकि मैं अभी अब जीएसटी एट सबके लिए नया है एंड मैं भी नया ही हूँ आप लोगों में से। सो आई होप
हाँ सर. Yes sir. Sir, am I audible? हाँ, yeah, ma'am. Yeah. Yeah, my slides are completed and so, Okay sir. Sir. Sir, Hello. we will open for the question and answer session. Hello. Any Pankaj members, sir, any questions sir? I am audible. Yes, Yeah, yes, yeah. yes sir. Pankaj sir, actually I want to know some of the actually I want to know अपील करने से पहले जो फैक्ट ऑफ द केसेस जो अपने को जानने हैं, how can we know it is a one particular software updated all the cases is available in one in मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो भी अपने फैक्ट ऑफ द केस जानने हैं, कि जो भी जितने भी केस है तो उसमें से पर्टिकुलर कोई आइडेंटिफाइड करना है कि मेरा ये पर्टिकुलर ये केस इससे सिमिलर है, तो वो ऐसा सारा कहाँ से अवेलेबल होगा तो जहाँ से मैं ढूंढ पाऊंगा? सर वो तो अभी हमको स्टडी करना पड़ेगा कि ऐसे केस लॉज कहाँ पे हैं. जैसे मीन्स आप जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप ऐसा बोल रहे हो कि आपके पास कोई केस आता है, उससे सिमिलर केसेस उससे सिमिलर केसेस कहाँ पे हैं, या कोई कोर्ट का जजमेंट है उससे रिलेटेड. यस करेक्ट सर. सर अभी तक देखिए, अभी तक कैसा है कि जैसे अभी जब ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर आते हैं ना, तो वो पब्लिकली ट्रिब्यूनल्स के ऑर्डर सब पे अप्लीकेबल होते हैं और वो इजीली मिल जाते हैं. और हाई कोर्ट के केसेस में कैसा है, हम रीट के थ्रू जाते हैं ना, तो वो जैसे पता नहीं चलता है जब तक वो कोई लैंडमार्क हो नहीं, या तो अगर आप हर केस लॉज को या गो थ्रू होते हैं समराइज्ड, तो पता चलेगा कि भाई ये केसेस सिमिलर है, इस तरह से मैच करता है. दूसरा यहाँ पे मैं इस पे खाली एक चीज एडवाइस करूंगा कि अगर हम केस लॉ खोज रहे हैं ना, तो गूगल पे डायरेक्टली खोजें तो ज्यादा अच्छा है, नॉट कि कोई एआई पे. बिकॉज अगर हम कोई चैट जीपीटी या जेमिनी यूज करते हो या उस पे हम सर्च करेंगे तो केस लॉज तो बहुत सारे देंगे, लेकिन वो उस पे रिलाई करना ब्लाइंडली वो गलत है. क्योंकि बहुत सारे केसेस में इवन कोर्ट में भी देखा गया कि जो केस लॉज हम लिखते हैं ना, वो और उसके फैक्ट कुछ अलग ही होते हैं. मेरा खाली इतना कहना है कि अगर हमको कहीं पे भी उसके ग्राउंड्स नहीं मिलते हैं या हमसे सिमिलर जजमेंट्स नहीं मिलते हैं कि इससे रिलेट, तो हम उसको अलग अलग तरह से गूगल पे सर्च कर सकते हैं. या हम कोई कि भाई अगर हम बात करते हैं कि भाई 75 से रिलेटेड चाहिए कि भाई हमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो अगर हम गूगल पे डायरेक्टली सर्च करेंगे तो शायद उसके ऑर्डर्स मिल सकते हैं. क्योंकि कई बार बहुत सारे प्रोफेशनल्स उसको आर्टिकल्स लिखे के बारे में ब्लॉग्स लिखते हैं, तो वहां से हमको हिंट मिल जाती है. बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि भाई हमको चैट जीपीटी में केस लॉज नहीं ढूंढने चाहिए. बाकी आप एज ए प्रोफेशनल जो यूज करना, बट केस लॉज पे हम रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फैक्ट ऑफ द केस है कि बहुत सारे केस लॉ जो चैट जीपीटी निकाल के देगा वो आपके रिलेवेंट नहीं आएगा. ओके सर. और एक और सजेशन है सर, आपका जो नॉलेज है तो वो जैसे अपने को फैक्ट ऑफ द केस, ग्राउंड ऑफ द अपील, वो सारे के लिए एक और ऐसा कुछ लेक्चर सर कर लीजिए अटेंड, जिससे सारा और भी नॉलेज सब एनहांस हो. मैं तो रेडी ही रहता हूँ. हेलो मैडम, अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन. Okay sir. Thank सर you. मैंने जो है ना, ओके चलिए. Any other questions? Sir, we will wait for 5 more minutes. If any other questions, otherwise no question, then we will conclude this session, sir. Okay. Okay, ma'am. Sir, if you have a live example of any appeals and according to how to draft the application in the tribunals, so it will be better idea so that we can have a live example. Sir, appeal drafting or appeal filing in the portal? Not big one, a small application that will be fruitful. I mean, I am asking ki you are saying
appeal drafting means a statement of facts, grounds of appeal. So it will take another sessions because it will depend on the merits, depend on the how the matters have been adjudicated by the authority. But if I am talking about how to file the appeal before the e-filing portal, so I think it will take some time because right now I have no order till like a window open in the 2022, because right now they are accepting the appeal from which have order issued in before January 22. So we can keep the session after 10 or 15 days after, so we can take the live demo of the e-filing portal. In that cases, we can discuss about how to draft the statement of facts from any of the order in original or any of the DRC 07. So we can take the example कि in that cases कि यहाँ पे अगर ये चीज हुई है तो हमको ड्राफ्ट करना है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, कौन से ग्राउंड्स लेने चाहिए इस तरह के ऑर्डर्स में. सो वी कैन मेक अ वर्कशॉप टाइप कि भाई जहाँ पे हम जो भी 10 प्रैक्टिकल पीपल्स आर कि भाई 10 लोग 15 लोग जुड़ते हैं, सो हम वी कैन कि भाई हम एक लाइव एग्जांपल्स रख सकते हैं. अगर आपके पास कोई ऑर्डर्स हो तो यू कैन शेयर कि मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि इसमें हम ये ग्राउंड्स ले सकते हैं. इसके अलावा क्योंकि कुछ ग्राउंड्स ऐसे होते हैं कि जो टेक्निकली होते हैं कि जो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई देखने के बाद, उसके बाद कुछ ग्राउंड्स होते हैं कि जो न्यूमेरिकली कैलकुलेशंस बेस्ड होते हैं कि जहाँ पे आपको कैलकुलेशन है, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हो जो प्रोफेशनल, क्योंकि आप डे टू डे उसमें डील करते हैं. बट हम एज अ लीगल बैकग्राउंड पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा प्रोसीजरल लैप्स है या कौन सा और ग्राउंड्स हम ऐड कर सकते हैं या कौन सा केस लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं. चलेगा सर, एक अलग से सेक्शन हुआ तो यस सर पंकज सर, वो ड्राफ्टिंग के लिए एक अरेंज कर देना सर प्लीज. यस, मैं बात करता हूँ कमिटी में. और देर में भी अगर वो सब हमारे सुझाव अगर चेयरमैन सर वाइस चेयरमैन सर तक पहुंचेंगे तो अच्छी बात है. सर उसके बेस पे Yes, sir, कैसा है, we हमें will कैलकुलेशन कैसा definitely करना है, convey your अपील कैसा message, करना है, I mean, तो I think these will more interacting and more useful कि अगर आप भी एक दो ऑर्डर सैंपल लेके आए, हम भी एक दो ऑर्डर सैंपल लेके आते हैं, सो वी कैन डिस्कस. बिकॉज देखिए, या तो हम क्लाइंट्स का नाम हटा के फिर लेके आए कि भाई इस तरह के ग्राउंड्स हो, 4-5 हम ग्राउंड्स कंपाइल कर लें या एलिगेशंस कंपाइल कर लें कि भाई इस तरह के अगर एलिगेशंस लगते हैं तो उस केस में हमको क्या ग्राउंड्स लेना चाहिए. जनरली देखिए, अगर हम देखते हैं तो अभी तक के जो प्रोसीडिंग हुई है 5 सालों में, जैसे 21-22 की लास्ट डेट अभी 30 सितंबर थी जो इसमें नोटिस आई. सो वहां पे बहुत सारे केसेस में ई वे बिल के इश्यूज आते हैं कि भाई ई वे बिल में आपका टर्नओवर ज्यादा है, जीएसटीआर 1 में कम है, तो उस केसेस में हमको क्या ग्राउंड लेने चाहिए. फिर हो गया कि भाई आपके 3B नॉट फाइल्ड के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपके सप्लायर ने 3B नहीं भरा. बट वो अगर हम देखेंगे ध्यान से टेक्निकली तो वो सारे QRMP वाले होते हैं कि जिसके क्वार्टरली रिटर्न जाते हैं, तो उन लोगों के 3B नहीं होंगे बीच बीच में. तो उस केसेस में हम उनको उस तरह के ग्राउंड्स हम बात कर सकते हैं, तो हमको प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन होगा या हमको ड्राफ्टिंग में इजी रहेगा. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. Any other questions from members? Sir, I think there is no other questions. Then we will officially conclude. Okay, ma'am. Yes, thank you, madam. Thank you, sir. Yes. 1 second, sir. Thank you. On behalf of the Professional Development Committee of the Western India Regional Council and the Task Force of GST and Income Tax of the Western India Regional Council, the Institute of Cost Accountants of India, I express my heartfelt thanks to CMA Pankaj Kanujia sir for the wonderful sessions on the GST 80 readiness key points to keep in mind.
And thanks all the participants for participating in the webinar. Thank you, all of you. Now we will officially conclude these sessions. Thank you. Thank you, ma'am. I will share the Thank you, sir. PPT my also. Yes, So, sir. Yes, sir. Please share. So we will हाँ. circulate on our website with and mail to all the participants, sir. Sure. If anyone Thank can connect me कि भाई कोई हेल्प चाहिए कुछ चाहिए तो अगर मेरे को आप मैसेज कर देंगे या मैं फोन नहीं उठाऊं तो आप मैसेज कर सकते हैं. आई कैन डेफिनेटली रिवर्ट. ओके. थैंक यू. Okay, थैंक sir. यू. Thank you, sir. कॉन्टेक्ट Thank you. नंबर दे देना सर. आई थिंक मेरे पीपीटी में भी मिल जाएगा और मैडम भी दे देंगे. ठीक है. Yes, sir. I will ओके, share. थैंक यू sir. सर. थैंक यू सर. थैंक